Okay, good morning everyone. So I hope you all are doing well. मॉर्निंग में थोड़ी सी देरी हो जाती है, कभी स्टूडेंट की तरफ से कभी टीचर की तरफ से, दैट्स फाइन. बट द थिंग इज, जब क्लास में आए हैं तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, विच इज अगेन केसी वॉल्यूम 1 का हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे. पिछली क्लास में हमने क्या किया था, मैंने आप लोगों को डिक्टेशन एक्सप्लेन किया था कि इसको कैसे लिखते हैं, क्या आउटलाइंस हैं, एंड उसी के साथ में 60 वर्ड पर मिनट का हमने क्या लिया था, डिक्टेशन लिया था, राइट. सो उसके बाद में आप लोगों को उसका लिंक भी दे दिया था, ठीक है. जो डिक्टेशन है उसका लिंक दे दिया था, सो दैट आप लोग दोबारा डिक्टेशन लिख सकते हैं. अब आज की क्लास में क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका 80 वर्ड पर मिनट के डिक्टेशन के साथ में, ठीक है. जो पिछले बार हमने 60 पे लिया था, उसी सेम मैटर का 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन होगा. ऑलराइट, देन आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो मैटर है उसका पहले 400 वर्ड्स किए थे, अब बचे हुए 400 वर्ड्स को हम लोग दोबारा एक्सप्लेनेशन सेशन लेंगे एंड उसका 60 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन होगा, ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट की क्लास ये रहने वाली है. सभी लोग अच्छे से फोकस करें यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ इस चीज पर, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले डिक्टेशन से, पिछले एक्सरसाइज के डिक्टेशन से, ठीक है. एट 80 वर्ड पर मिनट. चलो एवरीवन रेडी. Steno School, KC Transcription 1 at 80 words per minute. 3, 2, 1, start. Now, sir, honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 1953. It has had a long history and in one form or another it has been before the public. Since the end of 1949. In the statement of objects and reasons, the various stages through which the bill has passed since 1946 have been summarized, and I need not recapitulate on this occasion the circumstances in which the then government of India took the decision in early 1946 to initiate an inquiry into the reform of our company law. I would remind honorable members that between 1946 and 1948, the entire field of company law was carefully reviewed by two distinguished company lawyers who were appointed to recommend the broad lines on which the present act should be revised. Their recommendations were examined in the then Ministry of Commerce, and certain tentative departmental views which emerged were circulated to all in a comprehensive memorandum to all recognized trade and industrial associations, bar associations, the high courts, and the state governments. That brought us to the end of 1949. Many representations on this memorandum were duly received from chambers of commerce, trade and industrial associations, state governments, and the general public. At the end of 1950, the Government of India appointed a committee under the chairmanship of Shri Bhabha
to go into the entire question of the revision of the Companies Act with particular reference to its bearing on the development of trade and industry in this country. The committee examined a large number of witnesses in many parts of the country and submitted its report in March 1952. This report again was circulated to all state governments, chambers of commerce, trade associations, high courts, and many other bodies. At the same time, a special officer was appointed in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, to examine the report in the light of the views received from the interested public and to submit proposals to government for the revision of the present act. The bill now before the House is based largely on the recommendations of the Company Law Committee, modified in a few particulars. Full stop. तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एट 80 वर्ड्स पर मिनट. ठीक है, लिखा गया आप लोगों से. ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं जो आज का एक्सप्लेनेशन सेशन है. ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन सेशन आप लोग का होगा अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसका. ठीक है, चलिए आइए सभी का ध्यान यहां पर. ओके, तो ये हमने कल खत्म कर दिया. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे. ये है आज का सेकंड एक्सरसाइज. ठीक है, इसमें मैंने कुछ ही हाईलाइट किया, सब कुछ हाईलाइट नहीं किया है मैंने. वो कुछ चीज़ें क्या है आइए देखते हैं, और थोड़े और जो चीज़ें की ज़रूरत है उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें आपको बतानी, सीखनी, पूछनी चाहिए. तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से मैं हाईलाइट इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इन वर्ड्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग नए हो अभी, सिंस वॉल्यूम 1 कर रहे हो. सो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों का यूज़ करें, इन आउटलाइन की प्रैक्टिस करें. जैसे आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म. ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, ये आ गया आई वुड लाइक टू इन, और ये फॉर्म का जो क्या है कॉन्ट्रैक्शन है, इन्फॉर्म द. ठीक है, इन्फॉर्म द था लेकिन यहाँ पे द लिखा नहीं है. चलो ठीक है, ऑनरेबल मेंबर्स आपने देख लिया है. और कैन नेवर बी, तो कैन नेवर बी तो अलग ही लिखना है, उसको क्यों हाईलाइट किया पता नहीं है, लोग ने अंडरलाइन किया हुआ है. एग्जॉस्टेड तो पता है आपको, एग्जॉस्टेड में ई जी आएगा तो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, एग्जॉस्ट, और ये टेड लिखा है. ठीक है, ऑल्दो द बिल, तो ये आ गया ऑल्दो द, एक सेकेंड, ऑल्दो द बिल. ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑल्दो द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की स्पेलिंग आउटलाइन देख लेना, ये रहा पार्लियामेंट. ओवर 7 months अगो, 7 months के लिए थ इन्होंने कर दिया है, म को हटा दिया वहां से, मंथ्स, तो थ स और अगो. ठीक है, देख लो कैसे बनाया है आउटलाइन, मंथ्स अगो. ठीक है, और थ्रू आउट, थ्रू और ये आउट उसी में जोड़ दिया गया है, थ्रू आउट. इनफॉर्मल, इन फर्दर स्टडीज एंड इन
इनफॉर्मल, ओके ठीक है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल डिस्कशंस विद द इंटरेस्ट्स कंसर्न्ड। तो इंटरेस्ट्स और ये सर्न्ड साथ में जोड़ दिया है, ठीक। कंसर्न अब जैसे लिखते हो उसी का स र न, कौन को इन्होंने कौन का जो ये है उसको हटा दिया है यहाँ पे। ऑन द ओकेजन पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड को कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया पार्टिसिपेटेड। आई हैव ऑल्सो, हैव के साथ तो ऑल्सो जुड़ जाता है। अराइजिंग आउट ऑफ द बिल, ये है अराइजिंग आउट ऑफ, अराइजिंग आउट और उसी में फ और द जोड़ दिया, ठीक है। बिल को अलग से लिखा है, आउट ऑफ द बिल। एंड आई प्रपोज, तो आई प्रपोज भी देख लो, आई पी पी आर एस ई, अप्रोप्रिएट, तो अप्रो और ये प्रिएट, स्टेज to bring before the select committee, which seems, हाँ ठीक है, which seems to me, which स म स और ये मी, ठीक है। to be worthy, व र ध और ये worthy, ठीक है, worthy of consideration in the light of this, तो ये आ गया in the light of this, in the light of this, ठीक है। बाकी देखिए सभी सिंपल सिंपल ही आप लोग थ्रू आउट दी ये हम लोग देखेंगे। आई थिंक इट इज, तो ये रहा, आई थिंक के साथ में इट इज जोड़ दिया, ये तो इजी है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ दी, ठीक है, इसको भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेजिस्लेटिव मेजर, हाँ ये देख लो, लेजिस्लेटिव मेजर, ये लेजिस्लेटिव क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव और ये मेजर, इन रिसेंट लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, legislative history, but its size might be regarded, might be, तो उसको अलग लिखो आप, ठीक है। माइट बी गार्डेड समझ जाओगे क्या, तो देख लो, अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो फटाफट अगर हो जाए, तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे इतना लिख दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बाकी देखो, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आ गए, जो हमने कल पढ़ा हुआ था, दोबारा उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटिंग, तो कन स और ये ल और ये डी और टी एन जी, ठीक है। कंसोलिडेटिंग। कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड तो ठीक है, इतना कुछ ये नहीं है। कॉम्प्लिके और ये टेड, सेक्शंस इन द प्रेजेंट एक्ट, ये भी हमने कल देखा था। स्प्लिट अप, लार्ज नंबर ऑफ, भी सही है। विच हैव, स्प ली और त और उसी के साथ में अप अलग से लिख दिया, स्प्लिट अप, ठीक है। अकाउंटेबल, काउंटेबल के लिखते हैं, और द बिल इन द नंबर ऑफ, तो इन द नंबर ऑफ भी देख लो। वैसे हाँ आप लोग स्टार्टिंग में करो तो आप लोग के लिए जरूरी है ये आउटलाइन ध्यान देना, क्योंकि आगे बार कई बार ये आउटलाइंस रिपीट होंगी, ठीक है। इन द नंबर ऑफ, दिस इज द लार्जेस्ट, ठीक है। इन द बिल, एम्बॉडिंग, एम्बॉडिंग इतना कुछ नहीं है, एम डी और ये इंग, ठीक है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल भी आउटलाइन है, सबस्टैन लिखते हैं उसी में वो बन जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लिखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट, ये आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूट। आई वुड ऑल्सो, ये आ गया आपका आई वुड ऑल्सो, आई वुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन, अच्छा ये तो साथ में लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो अलग लिखो इसको। आई वुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऑब्जेक्शन, रीजंस, रीअरेंजमेंट, ये आ गया आपका रीअरेंजमेंट, रीअरेंज और ये मेंट। एग्जिस्टिंग चैप्टर्स, चैप्टर्स देख लो, आउटलाइन से इंपॉर्टेंट है इसकी। द कंपनी इज मोर लॉजिकल, ठीक है, पूरा बना दे लॉजिकल, ठीक। इंप्रूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल, ये हमने कल भी देखा हुआ था, इन द फॉर्म ऑफ बिल। उसी तरह से फैसिलिटेट, फैसिलिटेट तो ठीक है। आई विश अप्रिसिएशन, तो अप्रिसिएशन में अप्री और इस शे के साथ में शन जोड़ दिया, केम इनटू इफेक्ट लॉन्ग अगो, सो दिस इज केम इनटू इफेक्ट को साथ में लिखा है, केम को और इफेक्ट मतलब एक्ट जैसे हम लिखते हैं ना, उसी तरह से इफेक्ट को के टी को कट कर दिया तो इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। और लॉन्ग अगो तो आप लोग को पता है साथ में लिखेंगे, लॉन्ग और अगो, ठीक है। ये आपको लॉन्ग अगो वॉज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन होता तो उसके लिए एक अलग आउटलाइन, इम्प्लीमेंटेड को आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड है तो ये आ गया आपको इम्प्लीमेंट और ये टेड,
properly. Here is Ernest. ये आ गया Ernest, कहाँ गया? I know that the minister here is, हाँ ये आ गया अर्न, और ये एस के साथ में हेल्प कर दिया वहीं पे, ठीक है. अर्नेस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग कोलीग्स. अनफॉर्चुनेटली कभी आपको आना चाहिए, कैसे लिखते हैं? ये आ गया अन, देखो अनफॉर्चुनेटली कोलीग्स. ट्रिमिंग, कुछ और किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है. टोनिंग अप, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल have been appointing him at the state level को साथ में कर दिया ये लोग ने. ठीक है, देखो ये रहा स्टेट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी साथ में कर दिया. दे हैव टू बी टेकन. दे हैव, हाँ ये दे हैव जरूरी है, बहुत बार आएगा ये आपको, ठीक है. दे हैव टू बी टेकन. चलो, सो दिस वॉज ऑल द आउटलाइंस जो यहाँ पे बतानी है. अब हम लोग इसको देखते हैं क्या, अब इसको हम प्रॉपर्ली देखते हैं, समझते हैं कि इस आउटलाइंस का, किस आउटलाइन का क्या क्या मतलब है, ठीक है. चलो, सो गेट रेडी एवरीवन. एक सेकेंड. हाँ चलो, सो अटेंशन एवरीबडी हियर. ऑनरेबल मेंबर्स, ठीक है. सो ऑनरेबल मेंबर्स हम लोग अब देख देख के थक चुके हैं कि कैसे लिखते हैं. ये आ गया आपका ऑनरेबल और ये मेंबर्स, ठीक है. ऑनरेबल मेंबर्स विल नोटिस दैट सो फार एज दी, तो ये सो फार, एक सेकेंड, इस तरह से आएगा सो फार एज दी, ठीक है. सो फार एज दी पब्लिक रिलेशंस, सो फार एज दी नहीं, इसमें सो फार एज ही है खाली, सो फार एज ही लिखना है. पब्लिक रिलेशंस को रिलेशंस कर दिया, ठीक है. पब्लिक रिलेशंस मतलब रिलेशन बन जाता है वो. गो कॉमा द बिल हैज, एक सेकेंड इसको लाइट ले लूं क्या? हाँ लाइट वाला ठीक है. द बिल हैज कवर्ड, नहीं इसको डार्क ही रहने दो. द बिल हैज कवर्ड, ठीक है. वर को हेल्प कर दिया, ड बन गया, ठीक है. द बिल हैज कवर्ड एडिक्वेट ग्राउंड, एडिक्वेट ग्राउंड, ठीक है. फुल स्टॉप. In a measure like the company's bill, in a measure like the company's bill, कॉमा however, तो ये however इस तरह से लिखते हैं, ठीक है. कई बार बच्चे इसको नीचे कर देते, मतलब ऊपर कर देते ऑन द लाइन, तो इवन के साथ में कंफ्यूज हो रहा था. however which covers the entire, एक सेकेंड, the entire field of the operations, ऑपरेशन है सिर्फ, ऑपरेशन ऑफ जॉइन स्टॉक, ठीक है. जॉइन को और स्टॉक को जॉइन कर दिया, कंपनीज है तो इसी को डिसजॉइन करके कंपनीज बना दिया, ठीक है. मैंने बताया था इंटरसेक्शन के रूल्स पढ़ो, आपको पता चल जाए. द लिमिट्स ऑफ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, ठीक है. एंड I would like to inform the honorable members that although the, एक second, that although the bill, तो इसी में bill कट कर दो, although the bill was introduced, तो इसको लाइट ही लेंगे तो ये अच्छा है, ज़्यादा डार्क हो रहा है. was introduced इन पार्लियामेंट, तो ये आ गया इन अलग लिख लो फिलहाल, पार्लियामेंट बाद में साथ में जोड़ देना. पार्लियामेंट ओवर 7 months अगो, ओवर 7 months गो, ठीक है. मैंने बताया मंथ्स का, मंथ्स कैसे लिखते हैं, मंथ्स, तो इसको गायब कर दिया, सिर्फ थ ले लिया, ठीक है. ओवर 7 थर्स अगो, तो आप लोग समझ जाओगे थर्स मतलब मंथ्स की ही बात हो रहा है. मंथ्स अगो आवर ऑफिसर्स have been engaged throughout this period in further studies and informal discussion and informal
इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहो तो इनफॉर्मल ऐसे भी लिख लो, जैसे आप लोग नॉर्मली लिखते हो उस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल डिस्कशन विद द इंटरेस्ट्स कंसर्न, तो ये इंटरेस्ट्स इसमें ऐसे नहीं आएगा, इंटरेस्ट सर्न्ड है तो ऐसे बन जाएगा, इंटरेस्ट सर्न्ड। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नॉर्मली अलग कर सकते हो, ठीक है। ये लो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, इंटरेस्ट कंसर्न्ड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट कंसर्न्ड। एंड ऑन occasions I have also participated, ठीक है, हालांकि पार्टिसिपेटेड, एक मिनट, ये आ गया पार्टिसिपेटेड, ठीक है। मैं एक्चुअली पार्टिसिपेटेड ऐसे लिखता, पार्टिसिपेटेड, ठीक है, पार कर दिया, सी कर दिया, पे और उसी में टेड कर दिया, तो इतनी कंप्लीट आउटलाइन हम लोग मैं थोड़ा नहीं बनाता हूँ, दैट इज वाई। बट आप लोग सिंस इनिशियल स्टेज में हो अगर, तो आप लोग ये कर सकते हो, या तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो, पार्टिसिपेटेड, ठीक है, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। पार्टिसिपेटेड इन सच डिस्कशन, डिस्कशंस है, ठीक है, फुल स्टॉप। आई हैव ऑल्सो गिवन सम, तो आई हैव ऑल्सो, गिवन को भी सब ऐसे साथ में जोड़ सकते हैं लेकिन ठीक है, आई हैव ऑल्सो गिवन सम फर्दर थॉट, फर्दर जाएगा थॉट टू सम ऑफ द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द बिल, ठीक है। देखो इशू मैंने कंप्लीटली, इन्होंने इशू को स कर दिया है, मैं थोड़ा इस तरह से शूज करके लिखता हूं, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ द, arising out of the what, out of the bill, and I propose at the appropriate stage देख लो स्टेज कैसे लिखते हैं, स्टेज to bring before the select committee, to bring before the select committee, ठीक है, ये सिलेक्ट आ गया और कमिटी का कॉम का अलग से जोड़ दिया, चाहो तो आप उसको पूरा लिख दो, जैसे सिलेक्ट कमिटी इस तरह से, ठीक है। any change in the provisions of the bill which seems to me to be worthy, चलो वर्दी ऐसे कर दो, to be worthy of consideration, in the light of this, दिस, चलो ठीक है, इसी में दिस जोड़ दिया, ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है, कहाँ गया फर्दर एग्जामिनेशन, यस, एग्जामिनेशन ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ठीक है ऐसे ही करो फिलहाल, नो ऑनरेबल मेंबर्स विल के साथ हैव भी जोड़ सकते हो, नोटिस्ड, will have noticed that the bill उसी में जोड़ दिया, bill contains ऐसे लिखो, या फिर उस तरफ करके आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल ना ऐसे, ठीक है, the bill contains 6, डबल डैश डाल दो क्योंकि 6 को आप दिस से कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, 6 क्लॉजेस, वरना दीज क्लॉजेस जो आप कभी कभी लिख दोगे तो 6 लिख के नीचे डबल डैश डाल देना, एंड 12 स्केड्यूल्स, तो ये स्केड्यूल्स मतलब शेड्यूलर्स, ठीक है, शेड्यूल्स, आई थिंक इट इज प्रोबेबली, तो ये आ गया प्रोबेबली की क्या, कॉन्ट्रैक्शन, प्रोबेबली वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट ना, तो लॉन्गेस्ट, ठीक है, लेजिस्लेटिव मेजर भी, लेजिस्लेटिव मेजर के लिए शर्स, ठीक है, इस तरह से शर्स जोड़ दिया, मेजर ऐसे लिखते हैं, लेजिस्लेटिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो समझ जाओ, लेजिस्लेटिव मेजर्स को जोड़ दिया है, इन recent legislative history, but its size, full stop, but its size, एक सेकेंड, हाँ, but its size
माइट बी रिगार्डेड, तो ये माइट बी गार और ये डेड, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप माइट, एक सेकंड ये क्या हो गया, माइट बी रिगार्डेड ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। माइट का ये आई है ये, ठीक है, या फिर इसको भी अलग कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इतना कोई जरूरी नहीं है हर एक जगह पे आपको एडवांस डिप्लॉय करना, नॉट नेसेसरी। नहीं समझ में आ रहा है तो वही आपको समझ में आना चाहिए। एज मिसलीडिंग, ठीक है, मिसलीडिंग अनलेस I make a few comments, unless I make a few comments। ये आ गया कॉम और ये मेंट्स का कॉम और एंड्स, ठीक है, उससे बन जाएगा कॉमेंट्स, फुल स्टॉप। द बिल इज बोथ, तो ये आ गया द बिल इज बोथ। वन मस्ट रिमेंबर, वन मस्ट रिमेंबर, वन मस्ट रिमेंबर। आज थोड़ा सा आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दैट इज़ वाई लगा था कि सुबह लाइट भी नहीं रहेगी, बट लाइट है, ठीक है। सो हाँ, कहाँ है हम, वन मस्ट रिमेंबर अ कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग, ठीक है, कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग मेजर, एंड अमेंडिंग measure, full stop, as mentioned in the statement of objects and reasons। ये तो अपने पहले ही कल ही देख लिया था कैसे लिखते हैं। this is the first opportunity, this is the first, ठीक है, opportunity which has occurred, तो which has occurred को ऐसे लिख दो, occurred बन जाएगा ये, since 1923, 19 की वजह से लिखने की जरूरत नहीं है बट ठीक है लिख दिया, for the consolidation of the companies act, ठीक है, डबल डैश डाल देना। एडवांटेज has been taken of this opportunity to redraft, री और ये ड्रा और ये फर्ट उसी में कहते हैं रीड्राफ्ट, ठीक है, सेवरल ये हुक को यूज किया करो, ये जो फ वाला हुक है इसको बच्चे थोड़ा कम डिप्लॉय करते हैं, दिक्कत होती है इससे, तो इसीलिए डिप्लॉय किया करो, ज्यादा यूज किया करो। सेवरल लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो ये आ गया कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, सेवरल लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड sections in the present act which have been ऐसे भी आप कर सकते हो, पता है कि नहीं आपको, which को साथ में उसी में व का हुक दे दिया तो वो have बन जाएगा, ठीक है, which have और ये been नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, which have been, ठीक है, बढ़िया ये आउटलाइन है, इसको अडॉप्ट करो। which have been split up, तो ये स्प्ली और ये ट और ये अप, ठीक है, पूरा लिखा गया है, into a large number of clauses, full stop। this is the largest एक सेकेंड, this is the largest single factor अकाउंटेबल एक सेकेंड, काउंटेबल, ठीक है, इस तरह से काउंटेबल लिखो, अकाउंटेबल बन जाता है, ठीक है, काउंटेबल फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, फॉर द इंक्रीज इन दी, अच्छा इन दी के साथ ही इन दी नंबर ऑफ, जैसे लार्ज नंबर ऑफ लिखा था उसी तरह नंबर ऑफ यहाँ पे भी जोड़ देंगे, नंबर ऑफ क्लॉजेस इन द बिल, तो ये इन द और ये बिल साथ में कट कर दो, स्टॉप। न्यू क्लॉजेस embodying substantial changes in the present law would hardly constitute, एक सेकेंड ये आ गया, constitute more than
मोर देन साथ में आ जाएगा, मोर के साथ में एन कर दो, वो मोर देन बन जाता है, ठीक है, मोर देन अ स्मॉल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ द बिल, फुल स्टॉप। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ करेंगे हम लोग। आई होप हम लोग को यहां तक हर चीज समझ में आ रही है, ठीक है। 6 को नंबर में लिख दे तो, हाँ तो वही तो सौरभ मैंने बताया ना, 6 को नंबर में ही, 6 को नंबर में लिख दो, 6 लिखो, उसको नीचे डबल डैश दे दो, क्योंकि उस नंबर को आप दिस के साथ में कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए आपको वहां पे बताया है कि आपको उसको 6 ही लिखना, और क्या कर सकते हो। अब वो 6 है तो फिर या तो 6 लिखो, या तो फिर अगर आपको 6 लग रहे कि आप कंफ्यूज कर जाओगे तो आप 6 को ऐसे लिख सकते हो, ये देखो ऐसे 6 करके डॉट डाल दो, ठीक है। ये क्या बन गया, स क स, तो ये 6 ही बन गया बाय डिफॉल्ट। तो आप या तो फिर 6 करके से डबल डैश डाल दो, या तो इस तरह 6 करके ऐसे लिख दो, ठीक है। 6 को आप चाहे SIX लिखो ट्रांसक्राइब करते वक्त, या फिर आप 6 इस तरह से नंबर लिखो, दोनों ही सही है, एग्जाम में कोई भी आपको गलत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे पैरा डाल दो। आई वुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन, ठीक है। अब इसको अगर ड्रॉ अटेंशन को साथ में करना था तो इस तरह से कर सकते थे, जैसे आई वुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल आप अलग ही रखो, ड्रॉ अटेंशन टू दी स्ट्रक्चरल changes in the bill to which a reference has been made in the statement of objects and reasons, full stop. The redraft of the bill and the rearrangement, ठीक है, rearrangement of the existing chapters, पी को उसमें डबलिंग कर दिया, पटर बन गया वो, ठीक है। पी में टर का साउंड आ गया, टर थर डर जैसे आपने पढ़ा हुआ था, वही रूल है यहाँ पे। इन दी कंपनीज एक्ट, ठीक है, इन अ मोर लॉजिकल ठीक है, एक सेकंड, नहीं इन्होंने पूरा लिखा, लॉजिकल, लो पूरा लिख लो, लॉजिकल ऑर्डर हैव आई थिंक रिजल्टेड, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, देख लो कोई आउटलाइन अगर चेंज हो जाएगी ना तो आप उसको समझ लेंगे। जैसे रिजल्टेड देखो मैंने रिजल्टेड कर दिया, इन्होंने पूरा लिखा है रिजल और ये टेड इस तरह से, ठीक है। रिजल्टेड इन अ नोटिसेबल, रिजल्टेड इन अ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट कहाँ आता है, लाइन पर आता है, अगर मैं ऊपर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अब वो आप लोग को देखना है क्या बन जाएगा, इन दी फॉर्म ऑफ दी बिल एंड आई होप, ठीक है। आई होप आप लोग को पता है किस तरह से लिखता है, बहुत पहले पढ़ा हुआ था इस आउटलाइन को। एंड आई होप विल फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक सेकेंड, फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, पूरा लिखते हैं ये लोग, मैं डॉट डाल देता हूं अंडरस्टैंडिंग में, एंड अप्रिसिएशन ऑफ द स्कीम, ठीक है। देखो धीरे धीरे आप लोग को आउटलाइन समझ में आने लगेगी, स्टार्टिंग में अगर नहीं भी इतना समझ में आ रहा है, जस्ट बी विथ मी, जस्ट कोशिश कीजिए कि इसको आप लोग लिख ले जैसा बताया गया है, ठीक है। दैट दी एक्ट विच केम इनटू इफेक्ट, तो अभी केम इनटू को इनटू नहीं लिखा, इफेक्ट को फैक्ट कर दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूरा लिख सकते हो, केम इनटू और इफेक्ट पूरी तरह से लिख सकते हो, समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप लोग फॉलो कर सकते हो। लॉन्ग अगो was implemented properly. I know that the minister here is very earnest, earn और ये est, ठीक है, in implementing it, but अनफॉर्चुनेटली, एक सेकेंड ये आ गया, अनफॉर्चुनेटली इस तरह से फॉर्चुनेटली बना दिया, अनफॉर्चुनेटली हिज कॉलीग्स, ठीक है। तो कॉलीग्स इस तरह से लिखो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसमें इन्होंने थोड़ा अजीब तरीके से दिया है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है।
Unfortunately, his colleagues at the state level, at the state, इस देखो इस तरह से आ गया आपका स्टेट, और इन्होंने उसी में लेवल जोड़ दिया ना, स्टेट के साथ में वर्ल्ड जोड़ दिया, ठीक है, स्टेट वर्ल्ड समझ में आ रहा है तो ठीक है, और एल्स यू कैन यूज द स्टेट लेवल, ठीक है, आर डिसअपॉइंटिंग हिम, स्टेट लेवल आर डिस, कहाँ गया, हाँ, आर डिसअपॉइंटिंग हिम, ठीक है, फुल स्टॉप, अनफॉर्चुनेटली दोबारा आ गया, अनफॉर्चुनेटली नो स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रिमिंग और टोनिंग, तो टोनिंग, एक सेकेंड ये आ गया, टोनिंग अप the administration at the state level, at the state level and at डिस्ट्रिक्ट के साथ में वर्ल्ड जोड़ देंगे, ये आ गया वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड, ठीक है, मतलब लेवल, दे हैव टू बी टेकन, दे हैव टू बी उसी में जुड़ गया है टे, और ये एक सेकेंड, दे हैव टू बी का बी यहां आ गया और ये टेकन का कन आ गया, ठीक है, इमीडिएटली, तो इमीडिएटली फुल स्टॉप, ठीक है, ये है आपकी पूरी की पूरी आउटलाइन ऑफ दिस सेकेंड पैसेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया है जो भी यहाँ पे बताया गया है, ओके, नहीं भी एक एक चीज एकदम डीप में समझ में आई देना, सो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसका 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन, सॉरी 60 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन लेते हैं एंड वी विल वाइंड अप टुडेस क्लास, ठीक है, चलो गेट रेडी एवरीवन। अटेंशन हियर, Steno School KC Transcription 1 Part 2 at 60 word per minute, 3, 2, 1 start. Honorable members will notice that so far as public relations go, the bill has covered adequate ground in a measure like the company's bill, however, which covers the entire field of operation of joint stock companies, the limits of consultation and discussion can never be exhausted, and I would like to inform honorable members that although the bill was introduced in Parliament over 7 months ago, our officers have been engaged throughout this period in further studies and informal discussions with the interests concerned, and on occasions I have also participated in such discussions. I have also given some further thought to some of the issues arising out of the bill, and I propose at the appropriate stage to bring before the select committee any changes
in the provisions of the bill, which seems to me worthy of consideration in the light of this further examination. No honorable members will have noticed that the bill contains 6 clauses and 12 schedules. I think it is probably one of the longest legislative measures in recent legislative history, but its size might be regarded as misleading unless I make a few comments. The bill, both, one must remember, a consolidating and amending measure, as mentioned in the statement of objects and reasons. This is the first opportunity which has occurred since 1923 for the consolidation of the Companies Act. Advantage has been taken of this opportunity to redraft several long and complicated sections in the present Act, which have been split up into a large number of clauses. This is the largest single factor accountable for the increase in the number of clauses in the bill. New clauses embodying substantial changes in the present law would hardly constitute more than a small fraction of the bill. I would also draw attention to the structural changes in the bill to which a reference has been made in the statement of objects and reasons. The redraft of the bill and the rearrangement of the existing chapters in the Companies Act in a more logical order have, I think, resulted in a noticeable improvement in the form of the bill, and I hope will facilitate better understanding and appreciation of the scheme. I wish that the act which came into effect long ago was implemented properly. I know that the minister here is very earnest in implementing it, but unfortunately, his colleagues at the state level are disappointing him. Unfortunately, no steps have been taken for trimming or toning up the administration at the state level and at the district level. They have to be taken immediately. Full stop. सो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन 1 का पार्ट सेकंड एट द स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट. ठीक है.
इस डिक्टेशन को आप लोगों को अच्छे से लिखना है, दोबारा कोशिश करनी है लिखने की। अगर नहीं बन पा रहा है तो स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड वी विल बी मीटिंग टुमारोज क्लास, जहां पर आपको इस सेम मैटर का 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन दिया जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू एक साथ कंबाइंड डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट का जो डिक्टेशन है वो 800 वर्ड्स का दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइंड होगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को बहुत ज्यादा बड़े डिक्टेशन लिखने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, विच इज आवर मेन गोल कि आप लोग 800 वर्ड्स लिखना है। 400 वर्ड्स तोड़ के एग्जाम में नहीं आते हैं। सो इट विल हेल्प यू बिल्ड दैट हैबिट ऑफ टेकिंग लॉन्गर डिक्टेशंस, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव क्लास टुडे। विल बी मीटिंग यू टुमारो मॉर्निंग। हैव नाइस डे।